Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is role of teacher organization, role of family and role of community, that is local community in school education. The particular topic related to MET semester 1 paper number 3 education studies and unit number 4. मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एमएड सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पेपर नंबर 3 एजुकेशन स्टडीज यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत शिक्षक संगठनों की भूमिका, फैमिली यानी परिवार की भूमिका, साथ ही साथ समुदाय की भूमिका विद्यालयी शिक्षा में, अर्थात विद्यालयी शिक्षा में शिक्षक संगठनों की भूमिका, परिवार की भूमिका और समुदाय की भूमिका। इसके साथ ही साथ यूनिट 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में भी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम शिक्षक संगठनों की भूमिका की बात करूँ तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि शिक्षक संगठनों को, जो शिक्षक समुदाय है, वो शिक्षकों को परीक्षा प्रणाली में, सिलेबस के यानी करिकुलम के निर्माण में, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। साथ ही साथ कैसे इसे व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए जिससे कि विद्यालयी शिक्षा को और मजबूती प्रदान की जा सके, उन सभी में भी मदद करती है। जहाँ तक फैमिली की बात है तो बच्चे कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का भाव, शब्दावली, कैसे शब्द का प्रयोग किया जाए, हैबिट यानी उनकी जो रहन सहन है, तौर तरीके हैं, हाव भाव है, उन सभी चीज़ों को जो कि विद्यालय शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है उसे भी वह सीख पाते हैं। समुदाय मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, दैट मीन्स अवेयरनेस के बारे में, और वैसी मॉनिटरिंग यानी प्रॉपर रूप से देखभाल करने के लिए विद्यालय की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संपन्न या संचालित हो रही है नहीं रही, उन सभी के बारे में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं दैट मीन्स रोल ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन, family and community play significant in the development of school education. If all three ignore, that means as a stakeholders, that means better we say that as a stakeholders, the particular all three play a significant role for the development of school education. Now, मैं अब आपको और इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class MET semester 1 paper 3 education studies. First, role of teacher organization in school education. Number 2, role of family in school education, and role of community in school education. But first, role of teacher organization in school education. As you know that teacher organization, that means play a significant role and vital role in the development of school education. The three major role of teacher organization are as: number 1, fostering professionalism; number 2, organizing teachers for social action; number 3, representing the teachers' causes and view. On the basis of all the 3 points, it indicates that teacher organization, that means play a vital role, and the most important vital role: number 1, organize seminars and symposia; number 2, run orientation and in-service courses; number 3, form subject teacher association; number 4, help teachers in conducting examination; number 5, run regular training courses for teachers once in 2 years. Next, provide literature on academic matters of larger interest. Number 7, form academic council. Number 8, publish a monthly souvenir. Number 9, conduct research work. Number 10, organize special seminars and meeting to enforce code of conduct among its members. Next, raise the standard of research, creating conducive environment for research. Next, organize seminars, symposium, debate and workshop in improve the process of teaching. Next, form subject teacher association to strengthen various discipline.
Next, form interdisciplinary association to exchange views and opinions. Next, invite experts from different disciplines to address the teaching community on innovation and new developments. Next, help in curriculum development, conduct of examination and evaluation. And the last one, publish monthly journal, paper and newsletter, evolve a code of conduct or professional ethics for its member and the academic community to follow. Now, next one is role of family in school education. As you know that family also plays a significant role. Family is a social institution which consists of some members who keep blood relationship with each other and cultivate basic cultural and moral values. Family has responsibility to teaching children as its contribution in building human resources for society. Members of family has a right to body get the body, prevent, take care and human rights from parents. So, function of family is very important to educate children to become human resource in society. The following role or functions: number 1, children learn communication skill. Number 2, habit formation start from family. Number 3, family provide facilities for studying. Number 4, table manners are learned from family. Number 5, children's got practical knowledge. Number 6, family provide proper guidance and counseling to the children. Number 7, sex education given by family members. Number 8, family inculcate moral and spiritual value. Number 9, children learn to overcome the struggles. And last one, language development start from the family. Now, next one, role of community in school education. Community involvement helps to raise a responsible child. It encourages parents' communities to actively participate in their children's learning in schools by visiting schools to monitor hygiene and teaching learning process. In the classroom, discuss pupils' performance with teachers and provide support to their children's quality learning. Now, the community can promote the school education by working with the school principals and teachers. They can act as a special group. They can act as a special group for watching and monitoring. The community can perform following special role. Number 1, generating awareness about education benefits and increasing enrollment. Number 2, representation in village education community, ward education committee, school management committee to manage schools, to increase the daily attendance rate of school students, to increase girls' retention in school, to increase the number of parents observing teachers training in the classroom. Next, boosting morals of school teachers. Next, monitoring the appropriate use of financial resources in school. Next, recruiting and supporting teachers. Next, making decision about school location and schedules. Next, monitoring and following up on teacher attendance and performance. And last one is actively attending school meeting to learn about children's learning progress. Now, some important questions related to Unit 4. Number 1, what do you mean by support system of education? Explain the principle and guidelines in organizing the support system and also discuss about the role of ministry and other government agencies in control and autonomy. Number 2, explain the role of media and usage of technology in school education. Number 3, explain the role of NGO, family and local community in school education. Next, discuss the role and involvement of NCT and NCERT. And last, explain the curriculum engagement in schools. All questions that is most important and vital, and their answer also in the video lecture. The remaining two topic, that is curriculum engagement and
monitoring and evaluation. Also, I will discuss in the earlier video in Unit 2 and Unit 3. So, now all matter in हिंदी. स्कूली शिक्षा में शिक्षक संगठनों की भूमिका. शिक्षक संगठनों के 3 महत्वपूर्ण भूमिका. नंबर 1, व्यावसायिकता को बढ़ावा देना. नंबर 2, सामाजिक क्रिया के लिए शिक्षकों का आयोजन. नंबर 3, शिक्षकों के कारणों और विचारों का प्रतिनिधित्व करना. ऊपर वर्णित जो मैंने 3 पॉइंट बताया, जो उनकी भूमिका शिक्षक संगठनों की, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं उसको एलाबोरेट करके यानी डिटेल में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ. नंबर 1, संगोष्ठी और सम्मेलन का आयोजन करना. सेकंड, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना. विशेष शिक्षक संगठनों का या संघों का गठन करना. परीक्षा आयोजित करने में शिक्षकों की मदद करना. 2 साल में एक बार शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना. शैक्षणिक मामलों पर सहयोग प्रदान करना. शैक्षणिक परिषद का निर्माण करना. एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करना. आचरण अनुसंधान कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना. सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करने के लिए विषय सेमिनार और बैठकें आयोजित करना. अनुसंधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने वाले अनुसंधान के मानकों को बढ़ावा देना. संगोष्ठी सिखाने के लिए संगोष्ठियाँ, सम्मेलन, वाद विवाद, कार्यशाला का आयोजन करना. विभिन्न विषयों को मजबूत करने के लिए विषय शिक्षक संघ का गठन करना. विचारों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अंतः विषय एसोसिएशन या संघ का गठन करना. नवाचार और नए विकास पर शिक्षण समुदाय को संबोधित करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना. पाठ्यक्रम विकास, परीक्षाओं के संचालन और मूल्यांकन में मदद करने के लिए मासिक पत्रिका, पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं इत्यादि प्रकाशित करना. शैक्षणिक समुदाय के साथ साथ पेशेवर नैतिकता को भी मुख्य रूप से विकास पर ध्यान देना. अब मैं विद्यालय शिक्षा में परिवार की भूमिका के बारे में स्पष्ट करूं. परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें कुछ सदस्य होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ दैट मीन्स कह सकते हैं कि रक्त यानी ब्लड के संबंध होते हैं, यानी उनके आपसी संबंध होते हैं. सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को भी वह धरोहर के रूप में बचाकर रखते हैं. समाज के लिए एक मानव संसाधन के निर्माण में परिवार के योगदान के लिए बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी परिवार की ही है. परिवार के सदस्य के पास शरीर को देखभाल और माता पिता से मानवाधिकार प्राप्त करने का अधिकार है. इसलिए मानव संसाधन को मुख्य रूप से बच्चों के बीच में शिक्षित करने के साथ साथ परिवार के कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं इस प्रकार हैं. नंबर 1, बच्चों के बीच संचार कौशल सीखने में मदद करना. उनकी आदतों को सिखाने में मदद करना. पढ़ाई और सुविधाओं पर ध्यान देना. तौर तरीके परिवार में ही बच्चे सीखते हैं, इसलिए तरीकों पर ध्यान देना. बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान पर भी ध्यान देना. परिवार बच्चों को उचित मार्गदर्शन करे तथा परामर्श भी प्रदान कर सकता है. परिवार के सदस्यों द्वारा यौन शिक्षा प्रदान करना. नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर भी मुख्य रूप से ध्यान देना. और संघर्ष के समय बच्चों को साथ देना और संघर्ष के तरीकों को सिखाना. भाषा पर मुख्य रूप से बच्चों के ध्यान देना. विद्यालय शिक्षा में समुदाय की भूमिका के बारे में भी मैं मुख्य बातें थोड़ी सी स्पष्ट करूं. सामुदायिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के विकास में निभाती है. माता पिता खासकर सक्रिय रूप से विद्यालय के विकास में या विद्यालय के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. कक्ष में कैसे शिक्षण व्यवस्थाएं सही तरीके से संचालित हो रही है उसको निगरानी कर सकते हैं, देख सकते हैं. और साथ ही साथ बच्चों के प्रोग्रेस यानी प्रगति को शिक्षकों के साथ मिलकर जान सकते हैं, उनके प्रदर्शन को समझ सकते हैं. इन आधार पर हम कह सकते हैं कि जो
महत्वपूर्ण समुदाय की जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहला नंबर 1, स्कूली शिक्षा में जागरूकता, भवन निर्माण के साथ साथ सर्वेक्षण में भाग लेना और नामांकन अभियान में भी भाग लेना। विद्यालय मैपिंग यानी विद्यालय का मानचित्रण और विद्यालय का उपयुक्त स्थान के बारे में भी जानकारी देना। विद्यालय में भवन, कक्षाएं, शौचालय और सभी बुनियादी सुविधाओं के बारे में भी सलाह प्रदान करना। पीने के पानी की सुविधा के बारे में भी जानकारी देना और उसकी व्यवस्था करवाना। सामग्री और कक्षा कक्ष से संबंधित जो भी वस्तुएं हों उसको समय समय पर जानकारी देना। उपस्थिति के बारे में भी सुनिश्चित करना कि उपस्थिति सही तरीके से बच्चों की विद्यालय में हो। कक्षा में जब कहीं भी विद्यालय में बैठक हो उस बैठक में भाग लेना और साथ ही साथ जो उचित सलाह हो वह विद्यालय को प्रदान करना। इस आधार पर ये बातें चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि समुदाय विद्यालय को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। साथ ही साथ स्कूलों का प्रबंधन, उसकी समितियों में भाग लेना, समितियों का गठन करने में मदद करना, विद्यालय में छात्रों की दैनिक उपस्थिति को बढ़ाने में भी मदद करना, लड़कियों की शिक्षा पर भी मुख्य रूप से ध्यान देना और लड़कियों का अत्यधिक नामांकन हो उस पर भी ध्यान देना। अध्यापकों को पढ़ाने वाले साथ ही साथ माता पिता की संख्या जिसमें कि वो जागरूकता पर ध्यान दें और दूसरे माता पिता को भी सिखाएं, जिससे कि ये बात बता सकें कि विद्यालय में पढ़ाई होती है, बच्चे विद्यालय जाएं। और विद्यालय के शिक्षकों का मनोबल बढ़ाना भी महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आते हैं। लास्ट में ग्राम शिक्षा समितियां का गठन करना और ग्राम शिक्षा समितियां कैसे मॉनिटरिंग करें, निरीक्षण करें और विद्यालय को कम से कम आगे बढ़ने में मदद करें, यह महत्वपूर्ण समुदाय के कार्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से इससे संबंधित कुछ यूनिट 4 के प्रश्न। शिक्षा के समर्थन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? समर्थन प्रणालियों के आयोजन में सिद्धांतों और दिशा निर्देशों की व्याख्या करें और नियंत्रण और स्वायत्तता में मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों की भूमिका के बारे में भी चर्चा करें। नंबर 2, विद्यालय शिक्षा में मीडिया की भूमिका या जनसंचार माध्यम की भूमिका और प्रौद्योगिकी के उपयोग की व्याख्या करें। नंबर 3, विद्यालय शिक्षा में गैर सरकारी संगठनों, परिवार और स्थानीय समुदाय की भूमिका को समझाएं। एनसीटी और एनसीईआरटी की भूमिका और भागीदारी पर चर्चा करें। नंबर 5, विद्यालय में पाठ्यक्रम की व्यवस्था को समझाएं। इस प्रकार से मैंने इस यूनिट 4 से संबंधित जो टॉपिक थे मैंने उसे पूरा कर दिया। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे भी मैंने दे दिया। इन सभी प्रश्नों को उत्तर आपके जो वीडियो लेक्चर हैं उसमें मिल जाएंगे। इसके जो 2 टॉपिक हैं यानी पाठ्यक्रम इंगेजमेंट, करिकुलम इंगेजमेंट और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑलरेडी मैंने यूनिट 2 और यूनिट 3 में पढ़ा चुके हैं, तो आप उसे देखें, समझें और आपको समस्याएं होंगी तो ज़रूर आप जो हमारे ऑनलाइन क्लास होंगे उसमें पूछेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ, यदि आवश्यकता होगी तो। तब तक के लिए धन्यवाद।